Let us continue the lesson number 4 from the diary of Annie Frank, page number 52. Lesson number 4. From the diary of Annie Frank, page number 52 from the beginning. Dearest Kitty, our entire class is quaking in its boots. Meaning is there, shaking with fear. Our entire class is quaking in its boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. डर इसलिए था क्योंकि आने वाला मीटिंग में डिसाइड करने वाले हैं टीचर्स, तो who will be promoted to next class and who will be kept back. Half the class is making bets. बच्चे बेट रखने भी लगे. Gian and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, Cian and Jacques. मैं और जियन मिलकर पीछे बैठे हुए दो बच्चे को देख के हंसने लगा. Cian and Jacques, who have stacked their entire holiday savings on their bet. वो इसलिए क्योंकि वही बेट रखा था. हॉलीडे मनी कलेक्ट करके they staked the whole money for betting. Stake, put on risk. From morning to night, रात भर ये बात चलते रहा. It is, you are going to pass. तुम तो पास हो जाओगे. तो सामने वाला बोलते, No, I am not. Yes, you are. No, I am not. Even G's pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. हम तो बहुत समझाए उसको. हम घूरने लगा, रिक्वेस्ट करने लगा, प्रकोपित होने लगा, but they did not mind. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. अगर मेरे से पूछूं तो मैं ये बता दूं, वैसे कमज़ोर बच्चे, फूलिश बच्चे, डम्मीज, that about a quarter of the class should be kept back. ये क्वार्टर मीन्स 25, 100 के हिसाब से. कम से कम इतने बच्चे कमज़ोर है वो फेल हो सकते हैं. बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ. लेकिन ये डिसाइड करने वाले हम कौन हैं? टीचर्स नो who will be kept back and who will be promoted. They are the most unpredictable creatures on earth. उनको पता है किस में क्या कमी है, क्या नहीं है. They will do according to their own way. I am not so worried about my girlfriends and myself. मैं और मेरे दोस्त लोग जो कहते हैं तो हम लोगों को कोई डर नहीं थे. We will make it. We will make it means we will pass. The only subject I am not sure about is maths. मुझे डाउट तो मैथ्स पे है. पहले ही बताया तो मैं मैथ्स में कमज़ोर. Anyway, all we can do is wait. इसलिए हमें चिंतित होने का ज़रूरत नहीं है. Result will come and it will come. And उससे पहले ये सोच के वो सोच के परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है.
and it is your case also. After the examination, you will also wait like this. What will happen? My weak subject is this and that. I don't know what will be. But our decision is not the decision. She says, it is the decision that we have to look and wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. तब तक हिम्मत नहीं हारना है. एक 13-year-old लड़की किस तरीके से अपने साथी लोगों को सांत्वना देते. I get along pretty well with all my teachers. Get along means friendly. I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Keesing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. हमारे मैथ्स के टीचर है, वो मेरे से चिढ़ते. His name is Mr. Keesing. वो इसीलिए मुझसे चिढ़ते हैं क्योंकि मैं क्लास में ज़्यादा बातें करते. After several warnings, he assigned me extra homework. कई बार मुझे टोका, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ. आखिरी में मुझे एक एक्स्ट्रा होमवर्क दिया असाइनमेंट के रूप में. An essay on the subject a chatterbox. वो भी पनिशमेंट है ये. एसे लिख के दिखाना ये चैटर बॉक्स के बारे में. चैटर बॉक्स मीन्स बातों नहीं ज़्यादा बोलने वाला. ये चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? अब स्लाइड पे आ जा. पता है चैटर बॉक्स. अब चैटर बॉक्स के बारे में क्या लिखूं? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर. आई डिसाइडेड. मैंने सोचा बाद में देख लेंगे, अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ऑल आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट. I jotted down the title in my notebook. तुरंत मैंने उसका हेडिंग मेरे नोटबुक में लिखा. Tucked it in my bag. बैग में रखा. And tied it to keep quiet. And बैग में रख के चुपचाप बैठे रहा. जब पनिशमेंट मिलते समय हम भी थोड़ा बहुत क्या हो जाते, परेशान हो जाता है, थोड़ा चुप हो जाता. वो सोची होगी अगर मैं चुप रहूँ तो हो सकता है मेरे से ये पनिशमेंट हटा दिया जाएगा. एनीवे, दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई. घर पे जाके होमवर्क वगैरह पूरा किया. आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल chewing the tip of my fountain pen. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. मैं सोचने लगा. हाँ, लोगों का सोचने का तरीका ऐसा है. कोई कोई इधर उधर देखते रहते हैं, कोई छत पर सीलिंग पे देखता है, कोई पेन पेंसिल मुंह में डाल के बैठे रहते हैं. और यही कुछ स्टाइल है सोचने का. मैं भी ऐसा किया. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words. कुछ लोग ऐसा लिखता है, कोई ऐसा काम मिला है तो. या तो बातें करते रहेंगे अपने आप, या तो ऐसे कुछ लिखते रहेंगे अव्यक्त रूप से. I'll leave big spaces between the words. शब्दों के बीच में ज़्यादा जगह छोड़ते ताकि पेज भरा हुआ दिखाई दे. But the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. I thought and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. थोड़ी देर सोचने के बाद मुझे लिखना ही पड़ा क्योंकि इट्स ए पनिशमेंट मस्ट बी कम्प्लीटेड. तो इसलिए मैंने सोचा अभी लिखे. 3 पेज तो लिखा जैसे बताया गया और मैं संतुष्ट हो गई. I argued that talking is a student's trait
and that I would do my best to keep it under control. फिर मैं बहस किया, इसमें क्या बात है, बात करना बच्चों का तो बस आदत है, उसको रोक के मैं क्या करूँ, हाँ कोई बात नहीं, मैं थोड़ा कंट्रोल करूँ अभी क्लास में. But that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more. फिर मैंने कंपेयर करके देख लिया, तो ये कोई बात है क्या, मैं ही बोल रही हूँ क्या, मेरी मम्मी भी बोलती है, लेकिन देखा जाए तो हम बराबर है, अब मम्मी भी मेरे से आगे नहीं है. इसका मतलब इतना भी बातूनी नहीं है जो लाइन क्रॉस किया है. मेरी मम्मी भी ज़्यादा बोलती है. एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स. ये तो खानदानी आदत है, इसको रोकने वाला कोई भी टीचर नहीं हुआ अभी तक. मिस्टर कीसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स. आर्ग्यूमेंट्स सुन के टीचर को हंसी आया. Mr. Keesing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. जब दूसरा लेसन पढ़ा तभी भी मेरा आदत तो वापस आ गए, ज़्यादा बोलने लगे. एंड ही असाइंड मी ए सेकेंड essay. उसने एक और essay लिखने का पनिशमेंट दिया. दिस टाइम इट वॉज सपोज्ड टू बी एन इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स. अब की बार सेकंड हेडिंग यही था, एन इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स, ना सुधरने वाली चैटर बॉक्स के बारे में लिखना. एंड हैंडेड इट इन, एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole lessons. 2 और लेसन पढ़ाए तब तो ये चुप रही. However, during the third lesson, he had finally had enough. तीसरे लेसन में पहुंच गया, फिर वही बात. Annie Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quacks," said Mistress Chatterbox. अब की बार तो इसके बारे में ऐसे लिख के लाना. टाइटल है ये, एंटाइटल मीन्स यही टाइटल से, ये हेडिंग से, क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स, मिसेस चैटरबॉक्स. दैट इज कॉल्ड मिस्ट्रेस. मिस्ट्रेस मीन्स मिसेस. द क्लास रोड. I had laughed too, though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. पूरे क्लास ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, हंसने लगा. मुझे भी हंसी आई, लेकिन मुझे कंट्रोल भी करना पड़ता था. On the topic of chatterboxes, it was time to come up with something else, something original. अब तो लेवल में आने का समय है. My friend Sani, who was good at pretty, offered to help me write the essay from beginning to end in words, and I jumped for joy. तो मेरी एक दोस्त सानी, उसने बोला तुम चिंता मत कर, तुम्हारे ऐसे लिखने के लिए मैं मदद करूँगी, शुरू से लेकर अंत तक पोइटिकल वे में मैं लिख के दे दूँ. Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject. और मिस्टर कीसिंग मुझे इसी सब्जेक्ट को लेके बस ज़्यादा चिढ़ाना चाहते थे. बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम. मैं अभी दिखा देती हूँ कि जोक किस पर था. आई फिनिश्ड माई पोएम and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. उसमें उसने ये लिखा एक मदर डक के बारे में और एक फादर स्वान के बारे में, उसका 3 बच्चों के बारे में.
वो 3 बच्चे इतना चिल्लाते थे, इतना आवाज़ करते थे, इतना परेशान करते थे, इसलिए फादर स्वान उसको मार डाला. And Mr. Keesing took the joke the right way. मिस्टर कीसिंग को समझ में आ गया कि जोक का मतलब क्या है, किसके प्रति है. He read the poem to the class. वो पूरा क्लास में इसको पढ़ के सुनाया. Adding his own comments and to several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned my extra homework. तब से लेकर मुझे सुधारने के बदले वो खुद ही सुधर गए, मुझे असाइनमेंट देना ही बंद ही कर दिया. ऑन द कॉन्ट्ररी, मिस्टर कीसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज. और उसको जोकिंग करने का एक नया सब्जेक्ट मिला और इस तरह से उसने मेरे साथ बड़े परेशान किया, मुझे डिस्टर्ब किया, मुझे क्लास में इंसल्ट करा दिया और ये सारी बातें लिखे वो लेटर बंद किया. यूवर्स आनी यूवर्स जैसा लिखा देख लेना ध्यान से. जब हम लेटर वगैरह लिखते समय यूवर्स लिखना होता है वो इस प्रकार लिखता है. कुछ लोग आर और एस के बीच में अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, लेकिन नहीं लगाना, ये सही वे. जब व्हेन यू राइट लेटर यू यूज द वर्ड लाइक दिस, यूवर्स. कुछ लोगों को का के की मीनिंग के लिए तो अपोस्ट्रोफी लगाने का आदत पड़ गया, लेकिन वो अच्छी बात है, लेकिन यूवर्स में नहीं है. अगर यूवर्स में का के की लिखा मीन्स यूवर्स में अपोस्ट्रोफी लिख के यस लिखा, उसका मीनिंग तेरा बन जाता. रिस्पेक्ट. सो बी केयरफुल. लर्न द वर्ड यूवर्स लेटर में आपका. बस ये लेटर लिख के वो अपना खुद का डायरी का एक पेज फिनिश किया. रीड द लेसन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, सिचुएशन एंड एवरीथिंग. ओके.